welcome to our lovely practice. We're so happy to, restart these I Am Here to Wonder sessions. As some of you all who've been on this journey with us know, this is the fourth session, and delighted to have you along. We have like this luminous panel of experts and poets and writers and singers, and we can't wait to hear them. So without much further ado, I'll get started. I would like to thank all the co-hosts this evening that we have. Of course, GZ, as always, we call the Goethe Zentrum GZ, and they've been with us for so long on this journey, and we wouldn't be here without them. So thank you to them. Thank you to Lamakan. We filmed the fabulous Varsi brothers in front of those beautiful rocks of Lamakan. And many thanks to them. Mao's Entertainment and Zach Aladdin, very grateful for them joining us. The Society to Save Rocks, our fiscal sponsor, and we wouldn't be here without them either. And of course, last but not least, the Hyderabad Poetry Society. I'll take 2 minutes to just explain why we call these sessions, these conversations, the I Am Here to Wonder conversations. We came across this, that Goethe, when faced with the majesty of nature, with the majesty of the earth, said, I am here to wonder, just stilled into that exclamation. And that's really what we've felt on this huge journey we've been on now for so long, researching, filming, editing, all of it, that we're struck with wonder at how wonderfully the cultural imagination of our city, the different aspects of our culture, the sensibility of the city, whether it's poetry, music, Shayari, Bidri, Dakkani miniature, Telugu film songs, whatever aspect we came across, there was so much affection, so much respect for the rocks. And that's really what, we want this session, that's what it's all about. And that's what our film is all about. I have to make a wonderful announcement that yes, we are there. The premiere is going to happen. It will happen sometime in August. And we strongly urge you to, be in touch with us, stay tuned to our platforms for an invite to the premiere. It's a free screening. This whole film is a voluntary labor of love. And, check us out on all our platforms, Facebook, social media. Check out our website, www.otherkohinoors.com, and write to us at otherkohinoors@gmail.com, and we'll send you an invitation. Yeah, I'm sure the GZ Tech team is so efficient. They've shared all the links and the Gmail ID and the website in the chat box. So please take a look and make a note if you wish. One request that Mahnoor Yar Khan and me, who are on this journey together, we have a very, this is a film, of course, and we hope it's a beautiful film that you like, but it's also what we've begun to call a film effort. And what that is once the premiere is done, then the work begins. We have a very ambitious outreach strategy. We call it the Otherkohinoors project, where we want to screen the film in every possible space in the city. And what we are looking at from you is if you could write into us, suggesting a space we can bring the film. It's free of cost. We'll have a discussion, bring the film, and have a nice dialogue and share what we feel about the rocks and in the way that the film has presented them also. In a very, we hope, a way that resonates with you, with Hyderabadi especially. Yeah. So do write to us and about any outreach spaces, schools, colleges, government, private, community spaces, old city spaces, Sikandrabad, Cyberabad, everywhere, your own building society, your community hall. If you have an idea for a place we can screen and come, do let us know. Yeah. I'd request now the GZ Tech team to share our crowdfunding links on screen. And I have to ask you, if you wish, please make us a donation, send us any support you'd like to financially, because we do have a film to make and an outreach to run.
So if you feel like it, do help us. The crowdfunding links are on the screen. The first one is for you to send us anything in rupees. It's through the Society to Save Rocks. The second one is for other currencies. Yeah. So what I would like to say is this is entirely voluntary on your part. Help us if you wish, and if you cannot or for any reason can't, don't worry about it. Yeah, but if you can, please do, and join us in this journey. We really urge you, strongly request you, and welcome you. Now, without any further ado, let's move on to this evening that we're all so excited about. We're very grateful to our two MCs who have so graciously agreed to join us and lead us through the evening. I'm going to just introduce you very quickly, to both of them. There is, I think all of us have come across Naeem, those of us who haunt Lama Khan, see him there for sure. Muhammad Abdul Naeem he says he's a traveler, a seeker, an avid movie watcher, educator, and he says occasional researcher. Naeem is associate professor in the Department of Organizational Behavior and HR at ICFAI Business School, Hyderabad. He received his PhD in the area of human resource outsourcing from IBS, Hyderabad. He is published in various national and international journals and magazines. He likes to teach newer courses in business management, social sciences, and while aspiring to take up social cause projects that are very close to his heart. He's passionate about teaching, research, and institution building. And as we well know, he actively participates in various social cultural events in the city. And now I will move on to Pallavi. Pallavi, by the time she was 25, she had a degree each, ladies and gentlemen, in science, management, and the performing arts in Kathak. She's passionate about theater, dance, and performance. In her words, I hail from Jabalpur, but my post-MBA placement was in Mumbai, and I would be at the theaters every weekend. It was not long before I enrolled into a Kathak workshop under Birju Maharaj Ji at NCPA and put my corporate papers in for good. That was 2008, and I haven't looked back since. She runs a Hyderabad-based initiative called Kriti Stories. Since the onset of the pandemic, she's also worked with theatre for young audiences and has written and designed a play in collaboration with Theatre Lolo, Cardiff, Wales. She has a play for toddlers called, very interestingly, Sang. Yeah. Okay, so without much further ado, ladies and gentlemen, Dil Tham Ke Rakhiye. I've always wanted to use that phrase. Dil Tham Ke Rakhiye, aur aaj ki shaam pathar sang shayari ke naam. Naeem and Pallavi, over to you. Thank you so much. Thank you so much, Shukriya Uma, for this very humble introduction. And I also take this opportunity to welcome my co-host, Pallavi Verma. Thank you, Naeem. Thank you, Uma. Yeah, so I will be hobbling between English, Urdu, and of course, Dakkani, the language of the kings and commoners, जो हमें विरासत में भी मिली है. उमा ने आपको एक बहुत ही आसान और सहल खाका दिया है, The Other Kohinoors का, जो कि इस प्रोजेक्ट और उन सभी लोगों के जज्बात की नुमाइंदगी करता है. दरअसल ये जो फिल्म है, The Other Kohinoors, वो ना सिर्फ डेक्कन के बेशुमार चट्टानों की, उनके माजी की, बल्कि हाल और मुस्तकबिल की बातें करती है, बल्कि ये भी एहसास दिलाती है कि ये जो अवामुन नास तक हम किस तरह ये विरसा और सरमाया पहुंचा सकते हैं. हम मुत्तहिद होकर इस विरसे को संभाल सकते हैं और उसकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का जो जिम्मा है वो हमारे कांधों पर है. These are the treasures of natural history and heritage, and one needs to not only protect them but also feels proud to be part of this profound formations that have happened in our own city and Deccan Plateau. हैदराबाद का तस्वुर बिना इन चट्टानों के तो नहीं हो सकता. शहर के अंदर, इर्द गिर्द, यहाँ वहाँ, बल्कि हमारे कमरों और घरों तक इन चट्टानों के नक़ूश नजर आते हैं.
So I take this opportunity to welcome everybody, all the stakeholders and audience for this wonderful महफिल of O Shayari, Very Rocks and Poetry. जैसे कि आपने महसूस किया होगा कि हमारा टाइटल संग यानी पत्थर या स्टोन या रॉक और उसका कॉम्बिनेशन शायरी से किया गया है. So it's a unique title that encompasses the beauty and glory of rocks and poetry together. तो हमारी इस महफिल में आप सभी ख्वातीन व हजरात का खैर मकदम है और हम उम्मीद करते हैं कि ये महफिल आपकी जिंदगी में एक छोटी सी शमा का काम करेगी. As we move along, a small request to kindly mute your mic, and whenever you want us to open them, please let us know. We will be all the more happy to have them open for you. You can also use the chat box to present your ideas, questions, comments, and of course, do appreciate for the artists. So, online session के कुछ फायदे हैं, उनमें से एक है कि आप अपने माइक का सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए. So, thank you everybody for joining us in this spectacular journey of rocks. So, पल्लवी आपसे कुछ कहना चाहती हैं बल्कि इस शेर के जरिए से. जी हाँ नहीं, बिल्कुल. मैं ये एक शेर आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी जो कि मैंने बचपन में सुना था और आज की हमारी महफिल से ये इसके अल्फाज की वजह से बहुत रेलेवेंस रखता है, ऐसा मुझे लगता है. तो वो ऐसा था कि संग दिल के संग जब मैं संग दिल के घर गया, संग दिल के संग जब मैं संग दिल के घर गया, संग दिल ने संग मारा, संग दिल मर गया. वाह वाह, बहुत खूब. तो संग इस लफ्ज के माने के साथ इस शेर के भी कम से कम दो माने निकल आते हैं. और कितना हंसी इत्तेफाक है कि आज हम संगों के संग के लिए इस महफिल में इकट्ठा हैं. तो और एक संग हीरा भी होता है. दक्कन से दुनिया को कोहिनूर हासिल हुआ था और दक्कन से ही दुनिया ने वारसी ब्रदर्स पाए. ये नामुमकिन है कि दक्कन की मौसीकी का नाम आए और इनका नाम ना लिया जाए. तो इन्हें कौन नहीं जानता और इन्हें कौन नहीं मानता. तो आज हम इनके दो कलाम सुन सकेंगे. नहीं बेशक, जी हाँ. सो वारसी ब्रदर्स, जैसे कि पल्लवी ने कहा कि शायद ही उन्हें किसी तारुफ की जरूरत है, बल्कि वो तारुफ के मोहताज नहीं है, सिर्फ नाम ही काफी है. उनके फैज और आवाज में इतनी कशिश है कि वो पत्थरों और चट्टानों को भी मुतहरिक कर दे. अगर वो इस वक्त हमारे साथ हैं तो हम उनसे अदबन दरख्वास्त करते हैं कि वो इन चट्टानों, पहाड़ों, पर्वतों, पत्थरों और अपने बचपन से जो वाबस्ता यादें हैं हैदराबाद की और यहाँ के सुनहरे पत्थरों की, वो हमसे कुछ शेयर करें. वारसी ब्रदर्स साहब से दरख्वास्त है अगर वो यहाँ पर मौजूद हैं. टीम उनका वीडियो कनेक्ट करेंगे हम. हाँ, वीडियो अगर है. जी हाँ, जी हाँ. मुझे लगता है कि वारसी ब्रदर्स हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन होंगे, लेकिन चंद दिन पहले नहीं वो हैं. आ गए. बहुत खूब, क्या बात. ढेर शुक्रिया वारसी ब्रदर्स, आपका हमारे इस महफिल में बहुत बहुत इस्तकबाल है. तो आपकी जो बचपन की यादें हैं हैदराबाद के इर्द गिर्द, जो पत्थरा हैं बल्कि चट्टाना हैं, तो उसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? बचपने से तो हम लोग दादा के साथ, हमारे दादा पद्मश्री अजीज अहमद खां वारसी साहब के साथ हाजिरी देने और कव्वाली का प्रोग्राम करने मीर मोमिन साहब की पहाड़ी पे जो है वहाँ हाजिरी देने जाया करते थे. और बाबा शरफुद्दीन की पहाड़ी, वो भी पहाड़ी है, आज भी मौजूद है. तो वहाँ दादा के साथ बराबर जाते थे, आते थे, अभी भी जाते हैं. पहाड़ों से तो बचपन से ही वाबस्ता है हम लोग. और हम जहाँ हमारी रिहाइश गाह है, जहाँ हम रहते हैं, इसको भी पत्थर घाटी बोलते हैं. वाह, क्या बात. जहाँ हम पैदा हुए, तो ये भी एक पत्थर की घाटी है. तो इसको शॉर्ट में लोग पत्थर घट्टी बोलते हैं. तो बचपने से ही जब से पैदा हुए हैं पत्थरों से जुड़े हुए हैं. और जो आप लोग तो बखूबी जानते हैं कि हमारा जो एरिया है पत्थर घट्टी,
जी। ये जो हैदराबाद और सिकंदराबाद का सबसे पहला फर्स्ट शॉपिंग मॉल है पत्थर घाटी पे। तो आप लोग तो बखूबी जानते हैं कि वो पूरा पत्थर का बना हुआ है, पूरा पत्थर ही है, उसका नाम ही पत्थर घाटी है। हाँ। तो हमारा तो लगाव बचपन से ही पत्थरों से रहा है, पैदा भी पत्थरों में ही हुए और इंशाल्लाह शायद ऊपर जाएंगे भी तो पत्थरों में ही जाएंगे। बहुत खूब, माशाल्लाह। काफी आपने एक बेइंतहा खूबसूरत खाका, मैं कहूंगा, पत्थर गट्टी का, जो कि हमारे इल्म में भी नहीं था। हम लोग यही जानते थे कि वो एक शॉपिंग एरिया है, लेकिन उसकी जो मुख्तसर सी तारीफ आपने जो की, बल्कि उसकी जो तारीख आपने पेश की, उसके लिए बेहद शुक्रिया वारसी ब्रदर्स का। तो चंद दिन पहले दी अदर कोहिनूर्स फिल्म के लिए वारसी ब्रदर्स ने कुदसी की एक बेहतरीन गजल लामकान में उस चट्टान के दामन तले गाई थी। एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू रजा मीर साहब. Raza Mir is a professor of business management and lives in the US, and he has published books on Urdu prose and poetry. His two latest books, one on Ghalib and the other one on Iqbal, were released last Thursday at Lamakan. He is one of who suggested this very beautiful ghazal, Reza Reza Hua Pathar, a ghazal of Qudsi, और जिसे बेइंतहा पुरमसरत तौर पर वारसी ब्रदर्स ने गाया है, बल्कि वारसी ब्रदर्स agreed to sing this ghazal for the other Kohinoors. We wish Professor Raza Mir could join us, but we are told that he is traveling back to the US just now after a brief stay in Hyderabad. रेजा रेजा हुआ जवां पत्थर, कह रहा है ये दास्तां पत्थर। इसी गजल का एक शेर है जो वारसी ब्रदर्स की पेशकश में शायद शामिल नहीं हो पाया। वो कुछ इस तरह से है, मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। किया है, बर्फबारी से जिंदगी है बबाल, बर्फबारी से जिंदगी है बबाल, रो के कहता है बेजुबां पत्थर। क्या बात, क्या बात। तो ये हमारी अदना सी कोशिश है कि इस संगो शायरी की महफिल के जरिए से हम उन बेजुबान पत्थरों की जुबान को भी सुन सकें, बल्कि महसूस कर सकें, और हो सके तो उनके लिए कुछ कर सकें। वारसी ब्रदर्स ने अपने मुनफरिद अंदाज में गाया और पेश किया है कुदसी की ये खूबसूरत गजल को। सो चलिए मिलकर सुनते हैं कुदसी की ये खूबसूरत गजल रेजा रेजा। So I request the ghazal of Qudsi Reza Reza, rendered by Warsi Brothers, be played now. पत्थर को हीरा कर दे मेरे यार की नजर, ना जाने क्या बना दे मेरे यार की नजर। रेजा रेजा हुआ जमा पत्थर, 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 रेजा रेजा हुआ जमा पत्थर।
सीने में बन गया एक गुलसिता पत्थर, 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 बन गया बस है ना तवा पत्थर, कितना बेबस 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 है ना तवा। यूं है तारी सुकूत हस्ती पर, हस्ती पर, यूं है तारी सुकूत हस्ती पर, यूं है तारी सुकूत हस्ती पर, यूं है तारी सुकूत हस्ती पर, जैसे हो नज़्म कुल जहां पत्थर, 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 जैसे हो नज़्म कुल जहां पत्थर। ठोकरों से है लाल आज़ाद कदम, ठोकरों से है लाल आज़ाद कदम, ठोकरों से है लाल आज़ाद कदम, ठोकरों से है लाल आज़ाद कदम। सर गिरा पत्थर, रास्ते में 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 सर गिरा पत्थर। कहते हैं राय का पत्थर, जिसको कहते हैं राय का पत्थर, जिसको कहते हैं राय का पत्थर, जिसको तेरा है उसी से आया, तेरा है उसी से आया, तेरा है उसी से आया, राय का पत्थर, जिसको कहते हैं राय का पत्थर, जिसको कहते हैं राय का पत्थर, जिसको कहते हैं राय
साथ ऐ खुदसी, दिल के मौजों के 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 साथ ऐ खुदसी, हाँ दिल के मौजों के साथ ऐ खुदसी, दिल के मौजों के साथ ऐ खुदसी, दिल के मौजों के साथ ऐ खुदसी, हाँ दिल के मौजों के साथ ऐ खुदसी, बन गया आज बेकरां पत्थर, 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 बन गया आज बेकरां, बन गया आज बेकरां पत्थर, बन गया आज बेकरां बन गया आज बेकरां पत्थर, बन गया आज बेकरां पत्थर, रेज़ा रेज़ा हुआ जवां पत्थर, रेज़ा रेज़ा हुआ जवां पत्थर। वाह, बहुत उम्दा। कुछ कहे बिना पत्थर क्या कुछ नहीं कह गया। नहीं, बेशक, बल्कि मैं कहूंगा कि ये तो जश्न पत्थरा है। पत्थरों की अगर इबादत होती है तो शायद इसी गजलों और नगमों की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल। और इस लाजवाब पेशकश से जरूर सभी नाजरीन भी उतने ही मुतासिर हुए होंगे जितना आप और हम हैं। और मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो अपनी कमेंट्स और अपने सवाल चैट बॉक्स में डालते रहें। उनमें से कुछ चुनिंदा सवालों को लेकर महफिल के आखिर में हम हमारे आज के मेहमानों से जरूर बातचीत करेंगे। आप क्या कहते हैं? नहीं, एब्सोल्युटली, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो सेशन है संग शायरी का तो ना सिर्फ एक तरफा रहे बल्कि बहुत ही इंटरैक्टिव रहे। तो आपसे अदबन दरखास्त है कि आप जरूर बजरूर अपने कमेंट्स और अपने अप्रिसिएशन चैट बॉक्स में जरूर लिखते रहें, जैसे कि पल्लवी ने कहा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारी संग शायरी की अगली पेशकश जो है वो है सज्जाद शाहिद साहब से दक्कन के उन नगीनों के ताल्लुक से चंद कलाम दक्कनी में सुनना। जी हाँ, सज्जाद शाहिद साहब का नाम आते ही दक्कनी जबान हमारे इर्द गिर्द घूमने लगती है। I think one of the most difficult things is to introduce Sajjad Shahid Sahab because he is a multifaceted personality and wears many hats. A quintessential Hyderabadi, Sajjad Sahab is a practicing civil engineer with a keen interest in history, culture, art, and architecture. A dedicated heritage activist, he has contributed towards increasing awareness for the protection and preservation of built heritage. And he has played an instrumental role in a number of conservation projects. And he has served on various committees as an expert on culture, heritage, and urban history. And he has, मुझे बताया गया है कि he has an elephant's memory. उनका क़ुव्वत हाफ़िज़ा इतना ज़्यादा है कि वो ढूंढ कर उन पुराने नगीनों को तराश कर निकालते हैं. And he's going to bring us some of the lost or hidden gems and stories about Deccan and Hyderabad rocks. So, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Sajjad Shahid Sahab. Sajjad Sahab, over to you. सर आप म्यूट पे हैं सर. सज्जाद साहब. जी जी, आदाब सर. आदाब. नहीं साहब, आपने कुछ ज्यादा ही कह दिया. अब वो मेमोरी पता नहीं कहाँ जाने लगी है. एलिफेंट ही एलिफेंट रह गया. दक्कन की बात आप दोनों ने कही, दक्कन का जिक्र किया आपने.
एक गहवारा तहजीब का दक्कन माना गया है, पहले भी था, आज भी है। It's a land steeped in culture. It is famed equally, I think, for its gems. Diamonds सबसे ज़्यादा prominent है, as well as its very spectacular rock formations. इसके अलावा दक्कन की एक खास बात ये रही कि यहाँ एक ऐसी कशिश रही है कि जो यहाँ आता है वो फिर बहुत जल्द यहीं का होकर रह जाता है। जुबैर रिजवी जिनका खानदान शुमाल से यहाँ आया था बहुत पहले, उन्होंने इस कैफियत को कुछ इस तरह बयान किया है कि कहते हैं, कहत मुसाफिर उत्तर का जो शहरों शहरों घूमा, दिल्ली देखी, बंबई देखी, कलकत्ता भी देखा। कहत मुसाफिर उत्तर का जो शहरों शहरों घूमा, दिल्ली देखी, बंबई देखी, कलकत्ता भी देखा, विंध्याचल की गोद में लेकिन दक्कन देश है ऐसा, जो आया एक बार यहाँ वो अपने देश न लौटा। क्या बात है। वो अपने देश न लौटा। तो ये कशिश रही है दक्कन की, और ये दक्कन की सबसे नुमाया खुसूसियत अगर आप विजुअल एस्पेक्ट में देखें तो यहाँ के पत्थर ही रहे। अब पत्थरों को अलग अलग नजर से लोगों ने देखा है, किसी ने पूजा है पत्थर को, किसी ने संगे दरे जानाना मान के सजदे किए हैं, कुछ अहमखों ने पत्थर उठा के खैस जैसे दीवानों पे मारे हैं, और आजकल आप हम जैसे दीवानों पर भी वैसे पत्थर बरसाए जाते हैं, जो हैदराबाद की तहजीब और हैदराबाद की इन पत्थरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो कैफियत थी हैदराबाद में कि जो यहाँ आता था वो यहीं का रह जाता था, उससे एक बहुत ही यूनिक रीजनल नेशनल आइडेंटिटी बनती दक्कन की। दक्कन वाले जैसे हर एक को अपने प्रांत से, अपने रीजन से लगाव होना चाहिए, वो होता है, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही होता है। और मैं समझता हूँ सबसे पहली इसकी बहुत ही दिलकश शक्ल आपको अगर देखनी हो तो कुतुबशाही दौर पे पहुंचना पड़ता है, जहां गोलकुंडा के मलिक शौरा कोर्ट पोएट जो थे मुल्ला असदुल्ला वजी, उन्होंने अपनी एक मसनवी, बहुत मशहूर मसनवी है कुतुब मुश्तरी, उसमें उन्होंने दक्कन की और ख़ास तौर पे अपने इस रीजन तेलंगाना की तारीफ ऐसे की है कि मैं अपनी ज़ात से ये समझता हूँ, और काफ़ी लोग मैं समझता हूँ ये मुझे साथ देंगे इसमें, कि ये एक एंथम हो गया है, तराना हो गया है तेलंगाना। उसके चंद शेर हैं, मैं आपको सुनाए देता हूँ। दक्कन सा नहीं ठार संसार में, दक्कन सा नहीं ठार संसार में, पुनज फाजिला का है इस ठार में। दक्कन है नगीना, अंगूठी है जग, अंगूठी को हुर्मत नगीना है लग। क्या बात। अंगूठी की इज्जत नगीने से होती है, और वो हम दक्कन है। दक्कन मुल्क को दन जब साज है कि सर सब मुल्क सर और दक्कन ताज है। क्या बात है। अब इसके बाद आप पंच लाइन सुनिए, जहां दक्कन में भी एक अपना खास इलाका है जिसे तेलंगाना कहते हैं, उसकी तारीफ सुनिए किस खास अंदाज से वजी ने की है। दक्कन मुल्क बहुत ही खासा है और तेलंगाना इसका खुलासा है। तो ये है दक्कन साहब। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब, जो आपने इतनी सारी, इतनी गहरी बातें इतने आसान तरीके से हमें समझाई और हमसे कहीं, ये मुझे तो हमेशा याद रहेंगी सर। और आप पर आए मेहरबानी अभी ना जाएं, क्योंकि अभी हम आपसे बहुत सारी और बातें करना चाहते हैं। जी मैं हाजिर। लेकिन फिलहाल मैं आप सभी को एक रैप गाने की तरफ लेकर चलती हूँ। दिस इज अ मिक्स्ड जॉनर रैप सॉन्ग and has bits from Telugu film songs and music and some folklore storytelling, and has also been added to it. It has been composed by the very popular DJ and composer Murthovik, christened as
the song of the Kohinoors, the song also contains some of the Tarana Telangana, जिसके बारे में अभी सज्जाद साहब ने हमें बताया. And it features in our film, The Other Kohinoors, in an integral way, adding significantly to the narrative of the film itself. It's an experiment towards contemporizing the Tarana, and our hope is that it will hit it off with everyone alike. And we are especially excited because one of the singers of this song is actually with us today, and we will talk to her and also listen to her later in the evening. Bahral, don't you think, Naeem, that we should listen to a part of this song? Absolutely. जिस तरह चाय की चुस्कियां होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता करके आप पीते हैं. मुझे भी उम्मीद है कि सज्जाद साहब की जितनी जो हिकायतें हैं, चुटकुले हैं, एनेक्डोट्स हैं, फिर उनके शायराना मिजाज के लिहाज से उन्होंने जो शेर पढ़े हैं, वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता देते रहेंगे. जहां तक उन्होंने तेलंगाना का जो तराना का जिक्र किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो तराना है तेलंगाना है, घर घर मोहल्ला मोहल्ला पॉपुलर होगा और ढेर सारे लोगों को अपनी तरफ राग़िब करेगा. तो चलिए इस रैप सॉन्ग के कुछ बाइट्स, कुछ इख्तिबासात सुनते हैं. So can we have the rap song be played now? मस्जिद बंडा, राजू बंडा, देखो अपना पत्थर दिल, इस शहर का रॉक सॉलिड दिल. सुबह में और शाम में, ऊपर नीचे बगल में, दिन में रात में, हाईवे में हाट में, घरा बाजारा सबच में. Shelters us, surrounds us. మావూరి గుండె జోరున్న గుండె, పెద్ద జోరున్న గుండె, ये दखन के असली हीरे. अंगूठी है जग, अंगूठी की हुर्मत नगीना है लग. दखन मुल्क का धन अजब साज है, ये सब मुल्क सर और दखन ताज है. दखन मुल्क बहुत ही खासा है, तेलंगाना उसका खुलासा है. Come to the city and you will see jewels as precious as the Kohinoor. दरिया ए नूर, शहर के नूर. शहर की हुर्मत ये नगीने है लब, दखन है हीरा अंगूठी है जग. शहर की हुर्मत ये नगीने है लब, दखन है हीरा अंगूठी है जग. वाह, बहुत ही खूबसूरत. और जो लोग हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनसे एक बार हम इल्तिमास करते हैं कि और ये भी बता दें कि आप है संग शायरी की इस खूबसूरत शाम और इस खूबसूरत महफिल में. Hope the audience enjoyed the song, and please do stay tuned to Other Kohinoors platform for an invitation to the premiere, which will be at the Prasad's IMAX very soon. हमारे crowdfunding के जो links है आप chat box में भी देख सकते हैं, उसे नोट कर सकते हैं. और please 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 do pass it on to your family members, friends, and all who care about saving our rocks. आपका क्या कहना है पल्लवी? आई थिंक जी बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल इस मामले में राब्ता रखती हूँ. आपने सही फरमाया. और हम अब पूर्वा गुरु जी की तरफ चलें. हाँ बिल्कुल. हमारी जो अगली पेशकश है इस शाम वो है हमारी नेक्स्ट स्पीकर और ऑल्सो अ सिंगर पूर्वा गुरु जी. Purva Guru has a professional experience of 25 years and she lives in Hyderabad, and acclaimed ghazal singer since last 18 years. A great artist of All India Radio and Doordarshan, and she did MA in music from Barkatullah University, Bhopal. And she is the disciple of renowned singer late Ustad Sarwat Hussain ji. She participated in various heritage cultural festivals across regions. तो एक जो शेर है वो कुछ इस तरह से है. दिल ही तो है न संगो खीस, दिल ही तो है न संगो खीस, दर्द से भर ना आए क्यों, रोए तो हम हजार बार कोई हमें सताए. पूर्वा जी से अदबन गुजारिश है कि वो इस शेर पर कुछ तबसरा करें.
पूर्व जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस शाम में, संगो महफिल की, बल्कि संगो शायरी की महफिल में। क्या हम पूर्वा जी को का ऑडियो कनेक्ट करेंगे? Hi guys, I think पूर्वा जी का कनेक्शन नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, तो हम प्रोग्रेस कर लें, और अगर वो हैं तो उनसे बाद में फिर से बात करेंगे। जी, जब वो आएंगी तब हम उनसे मुखातिब होते हैं। फिलहाल हम उनकी गाई हुई गजल सुनेंगे। बिल्कुल, चलिए प्ले करते हैं। चलिए। दिल ही तो है न संग खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। कैदे हयात बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। कैदे हयात बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, दिल ही तो है न संग खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। गालिब ख़ास्ता के बग़ैर कौन से काम बंद है, गालिब ख़ास्ता के बग़ैर कौन से काम बंद है। रोइए ज़ार ज़ार क्या कीजिए हाय हाय क्यों, दिल ही तो है न संग खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों।
बहुत ही खास और मखसूस अंदाज में पूर्वा गुरुजी ने ये बहुत ही उम्दा गजल, जो कि मशहूर ज़माना गजल कह सकते हैं, शुक्रिया पूर्वा जी इस गजल का। और एंड आल्सो द फैक्ट दैट you are highlighting that how losing the rocks and rocky hills of our city has affected us badly. So इन पत्थरों की ज़बोहाली और डिलापिडेशन को देखकर हमारे दिल में भी, हमारा दिल भी दर्द से भर आता है। और क्यों ना भर आए, हम रो सकते हैं लेकिन उससे बेहतर कुछ और कर सकते हैं, और हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, जैसे कि बेजुबान पत्थर को फिर से वहां पर पहुंचाना चाहिए जहां वो सदियों सदियों पहले हुआ करते थे। बिल्कुल जी हाँ। So perhaps this is the reason we are making this film, doing the outreach, so that we can share some of this grief and speak to how we can remember and honor the rocks that we have lost, as well as raise a dialogue and to keep the ones that remain. What we feel is that as Hyderabadis, we are very proud of our city, its growth, and all that it has to offer today. But we all feel this grief too. So this film effort and sessions like this are simply a way to express ourselves about all this. करेक्ट, एब्सोल्युटली नहीं। जो जैसा कि उमा जी ने पहले भी कहा था कि काम तो अब स्क्रीनिंग के बाद शुरू होगा। जी हाँ। तो और वो सभी के साथ आने से ही शुरू होगा। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर से सज्जाद साहब को वीडियो पे बुलाना चाहूंगी। वेलकम बैक अगेन सर। जी, हम फिर से आ गए, आपसे कुछ और बातें सुनना चाहते हैं, और मेरी गुजारिश है कि आप हमसे खासतौर पे वो 2-3 किस्से जरूर शेयर कीजिए जो आपने अपने वालिदैन के बारे में हमसे पहले शेयर करे हुए हैं। मैं ये सोच रहा था कि भाई जब गालिब के बगैर कोई काम बंद नहीं होता तो मेरे बगैर क्यों काम और फिर पूर्वा जी की इतनी सुरीली आवाज के बाद मेरी भोंडी आवाज सुनकर और जो है आप लोग और हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल आप लोगों का हुक्म है। ये दक्कन जो है वो कई चीजों के लिए मशहूर रहा है। आप यहाँ के हीरे कहते हैं, हम जो है यहाँ के जो पहाड़ पत्थर हैं, जो रॉक फॉर्मेशन है, उनको भी हीरों से कुछ कम नहीं मानते। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है एक और पहलू रहा है जिसे लोग भूलते जा रहे हैं। हमारे सूफी संत दक्कन के जो है वहाँ उन्होंने मिल के जो एक माहौल बनाया, जो शेयर उनकी नॉलेज थी, जो एक्सचेंजेस, मिस्टिक एक्सचेंजेस हमारे पास हुए हैं दक्कन में, इसका असर पूरे हिंदुस्तान पे, पूरी दुनिया पे पड़ा है। ये जो खास एक एक्सपेरिमेंट यहाँ हुआ था जहाँ ये सूफी और भक्ति मिस्टिक्स एक दूसरे से बात करते थे, शेयर करते थे और एक दूसरे से बोरो करते थे, वो सबसे खास बात है। इससे इम्पैक्ट हुआ है सूफीज्म पे और इससे इम्पैक्ट हुआ है भक्ति मूवमेंट पे। सूफीज्म में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ है कि कृष्ण भक्ति का कॉन्सेप्ट सूफियों के पास आया, सूफी शायरी में आया। लेकिन ये है कि दुनिया को देखने का जो एक अंदाज था और दुनिया के बनाने वाले को देखने का जो एक नया अंदाज यहाँ इन्होंने सोचा, ये बहुत यूनिक है। एक बहुत मशहूर दक्कनी के शायर भी थे, सूफी भी थे। ये आखिरी दौर था दक्कन के सल्तनत का, बीजापुर के ख़त्म होने से चंद साल पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक शायर हुआ करते थे, सूफी बुजुर्ग भी थे, काजी महमूद बहरी उनका नाम था। बहरी साहब अपने ज़माने के बहुत मशहूर, बहुत माने हुए जो है वो मिस्टिक थे और दक्कनी के शायर भी थे। ये और बात है कि हैदराबाद एक बार आ रहे थे तो रास्ते में उन डाकुओं ने लूट लिया तो पूरा सरमाया चले गया उनका, साथ में उनके अशार भी चले गए, लेकिन चूंकि वो बच गया जो बाद में उन्होंने लिखा, वो हमारे लिए बहुत अहम है। इत्तेफाक की बात है कि ये मेरी वालिदा के जद थे, आबा अजदाद में है हमारे।
और बहरी साहब ने बड़ी खूबसूरती से अपनी एक मसनवी मनलगन के जो है इब्तदाई जो हमदिया कलाम है, जो अल्लाह की तारीफ में उन्होंने कहा है, उसके पहले ही शेर में, मनलगन मसनवी के पहले ही शेर में पत्थर का जिक्र आ जाता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह हर जगह है, द ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो वहदतुल वजूद सूफियों का एक तर्ज सोच, तर्ज फिक्र है, उसके तहत उन्होंने कहा कि अहे रूप तेरा रत्ती रत्ती है, पर्वत पर्वत पत्ती पत्ती है, न पर्वत में अधिक न कम पत्ती में, यकसा रहे रास और रत्ती में। क्या बात। तू हर जगह है, तो हर जगह है, उसी क्वांटिटी में है जो बड़े से बड़े पहाड़ में है और छोटे से छोटे फूल पत्ती में है। तो इस किस्म के लोग दक्कन में रहे हैं, दक्कन की कल्चर को उन्होंने बहुत ज्यादा इससे मालामाल किया है। अब आपने कुछ किस्सों की बात कही, तो एक किस्सा सुन लीजिए जी। बाबा शरफुद्दीन बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, और सबसे पहले, सबसे पुराने, ओल्डेस्ट सूफी मिस्टिक टू कम टू दिस रीजन इवन बिफोर द बैबनीज गॉट कंट्रोल ऑफ गोलकोंडा एंड द सराउंडिंग एरिया। ये बाबा शरफुद्दीन पहुंचे, और पहाड़ी शरीफ मकाम है, सभी हैदराबादी तो जानते होंगे, उस पे उन्होंने जाके अपना डेरा डाला और वहीं उनकी दरगाह है। हैदराबाद के लोग बहुत मानते हैं, इसलिए आपको हैदराबाद में ये सूफियों के नाम के से मुतासिर हो के लोग अपने बच्चों के नाम रखते थे, तो शरफुद्दीन बहुत मिलेंगे आपको हैदराबाद में। जैसे यूसुफ बहुत मिलेंगे, हर गली में पुकार लो तो हर घर में से कम एक आध यूसुफ तो निकल के आएगा। तो उसी तरह बाबा शरफुद्दीन को भी बहुत मानते हैं, इज द ओल्डेस्ट सूफी ऑफ द रीजन। और इनकी दरगाह जो है पहाड़ी पे ऊंचाई पे है, वहाँ जो है लोग जाते हैं जो अकीदतमंद हैं। और हुआ ये कि हमारी वालदा, जो उस जमाने में भी काफी उनकी उम्र हो गई थी, 70-75 साल की हो गई थी, और उनको शिकायत थी पैर में तकलीफ की, चलने में भी बहुत मुश्किल होता था। घर के जो है 8-10 सीढ़ियां चढ़ते उतरते वो परेशान हो जाती थी, और हमेशा शिकायत करती थी कि इस ऊंचाई पे घर खामखा बनाया। वो एक दिन घर से गायब हो गई। हमारी फुप्पू जो उनकी हम उम्र ही थी, दोनों मिलके, द टू ओल्डीज वैनिश्ड। और कहाँ गए लोग? अब शाम में देखे तो दोनों आ रहे हैं, और चेहरे पे वेरी स्मग लुक, बड़े खुश। और घर वालों ने पूछा कि भाई आखिर आप दोनों गए कहाँ थे? तो बोले वो भाई मैं बाबा शरफुद्दीन की दरगाह पे हाजिरी देने का ख्याल आया, और ये सोच रही थी कि पैर में इतनी तकलीफ है, कैसे मैं चढ़ूंगी। तो मैंने बीवी से कहा, हमारी वो बीवी कहती थी, तो बीवी ने कहा चलो कोशिश करते हैं, हो जाएगा। जब ख्याल आया है तो जाना ही है। तो ये both of them who couldn't even walk properly had managed to climb up the steep hill, visit the dargah and come back, and there was no complaint of pain in the knees or in the legs, और ये थके बड़े खुश, बड़े स्मग। मैंने कहा अम्मा आप जो है 4 कदम चलने और ये 4 सीढ़ियां घर की चढ़ने उतरने में आप जो है एक हंगामा कर देती हैं, ये कैसे आप इतना ऊपर जाके? तो जवाब में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, सिर्फ एक शेर था, ऊंची महली मेरे ख्वाजा की मुझसे चढ़ा ना उतरो जाए, कहियो मोरे ख्वाजा से मेरी बहियां पकड़ ले जाए। मैंने आवाज दी, ख्वाजा ने बुलाया था, वो पकड़ के ले गए और वो छोड़ गए मुझे। तो इस किस्म के जो है अकीदे थे, और ये जो है हमारा यहाँ का कल्चर रहा है हैदराबाद का। ये जो है हुआ ये कि सूफी जो जाके ऊपर ऐसे डिफिकल्ट जगहों पे जो बच जाते थे, उसकी कोई वजह थी। एक तो वो भाई अपना ये था कि दूर शोर शराबे से खामोश जगह हो, जहाँ कोई उनको परेशान ना करे, कम लोग उनके पास आए, वही आए जिसको कोई काम है उनसे। तो ये था। तो बोला ये कैसे? तो हुआ ये कि अक्सर आप देखेंगे सूफी हजरात, और ये भी होता है शायद कि पहाड़ की ऊंचाई पे यू एटलीस्ट यू फील क्लोजर टू गॉड, दैट मच हायर अप। पता नहीं मुझे क्या मालूम क्या है उसके पीछे सच, लेकिन ये है कि ये
एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ कल्चर, ऑफ दरगाह कल्चर, ऑफ दरगाही क्यों, आप जो है कई आस्थानें हैं, कई ऐसी जगह हैं, कई जगह यात्रा करते हैं लोग, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं आते हैं, और जो है वो सिर्फ विल पावर पे होता है काम। अब हमारे यहाँ हैदराबाद में हुआ ये कि कुछ मैं मखिक कहूँगा उन्हें, उनको ये ख्याल आया कि लोगों को आसानी होनी चाहिए, तो वो जो है कहीं रैंप बना रहे हैं, कहीं केबल वे बना रहे हैं। ठीक है, केबल वे बना लीजिए आप, दैट्स अ रिवर्सिबल चेंज, आई डोंट माइंड दैट मच, लेकिन ये रैंप जो बना रहे हैं, खास तौर पर मौलाली की पहाड़ी अगर आप आजकल कभी गए हों तो देखिए एक रिटर्निंग वॉल ऐसी बड़ी बना रहे हैं कि वो मोनोलिथ था जिसकी खूबसूरती थी वो सब तबाह हो रही है, वो नजरों से ओझल हो जा रहा है। वो पहाड़ जो हमारे दिल के बहुत करीब था, मीलों दूर से हम उसे देख के खुश होते थे। तो ये ईज ऑफ एक्सेस रैंप जो है, ऐसी अहमक हरकतें ना हो सोसाइटी में, तो ये मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर होगा। और आप सूफियों की बात क्यों कर रहे हैं, खुद हमारे वालिदैन जब कुछ ज्यादा परेशान हुए शादी के बाद, वो अलग होके अपना घर बसाने की फिक्र हुई उनकी, तो निकले ढूंढने कि भाई चलो घर बनाते हैं। तो अम्मा तो वैसे दोनों उर्दू के और दक्कनी के वो थे, प्रोफेसर से पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, दक्कनी पे काम भी किया, रिसर्च भी किया, तो और उर्दू से भी लगाव था, उर्दू की डिपार्टमेंट में थी वालदा। तो वो गालिब की बहुत बड़ी फैन, वो जो है उन्होंने कहा कि हाँ चलो, ये अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम नवा कोई ना हो, तो ऐसी जगह वो ढूंढ रही थी। वालिद साहब को ये था कि भाई शहर से दूर चलो, ये बहुत भीड़ भाड़ है, और ये क्या है, ये वो वैसे भी गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के अलग प्राइवेट अपना काम करने लगे थे, तो उनको जो है ऑफिशियल डम से चिढ़ हो गई थी। तो वो इत्तेफाक से इकबाल के जो है बहुत ख्याल थे, पढ़ाते भी थे इकबाल, तो उनको दिमाग में आया कि भाई नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुम्बद पर तो शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। तो वो पहुंचे ढूंढने, पता चला कि कहीं यहाँ हिरम मंजिल एक जगह है, वहाँ जो है नवाब जो है वहाँ के वो जमीन अपनी बेच रहे हैं, तो जो है वहाँ देखते हैं चल के। दोनों पहुंचे, पहाड़ियों के दामन में जो है बहुत खूबसूरत जगह उनको नजर आई। अम्मा जरा हिचकिचाई कि भाई अब बिल्कुल ना इससे सड़क करीब है, ना पानी है, ना कुछ है, तो यहाँ कैसे होगा, कैसे गुजर होगा। जरा वो पीछे हट रही थी, तो वालिद साहब ने ताड़ लिया कि भाई इसको जो है कन्विंस करने का एक ही तरीका है कि गालिब का सहारा ही लेके इनको कुछ किया जा सकता है। तो वो जो मशहूर शेर गालिब ने हैदराबाद के बारे में लिखा था कि हैदराबाद दक्कन रश के गुलिस्तान इरम, हैदराबाद डेक्कन द एनवी ऑफ द गार्डन ऑफ पैराडाइज। तो इरम का ना लफ्ज वहां आ गया था। तो अम्मा से उन्होंने कहा कि इरम, गालिब ने कहा भाई, गालिब ने यही देखा होगा, इरम मंजिल की जमीन देखी होगी, तो उन्होंने कहा ये बात, और क्या दिखा होगा उनको हैदराबाद में। एंड आई थिंक दैट वन द डे, और दोनों ने मिलकर एक छोटा सा घर बनाया उनके गुलिस्तान इरम में, और उसका नाम कौसार रखा, पहाड़ की दामन में था। जब तो बहुत कम घर थे, हमारे नेक्स्ट डोर नेबर के एक आध मील पे हुआ करते थे, और तो कुछ नहीं था, सिर्फ पहाड़ी पहाड़ थे। लेकिन जैसे होता है कि वक्त के साथ बदलते हैं हालात, आबादी बदलती है। ये दोनों बड़े खुश जो है यहाँ रह रहे थे कि भाई हम तो पहुंच गए अपने ठिकाने, घोंसला मिल गया और वो घर बन गया। बकौल सिराज औरंगाबादी दक्कन के बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं कि राहत है मुझको कोहो बयाबा की सैर में, हर बर्ग सब्ज बिस्तरे संजाब है मुझे। तो बोले अपनी जगह मिल गई, अपन रहो, लेकिन जहाँ खूबसूरती होती है, जहाँ इस किस्म का माहौल होता है, वहाँ फिर लोग दूसरे भी आने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद जो है वो ऐसी गुंजान बस्ती हुई कि वहाँ ना गालिब की चली ना इकबाल की चली। अब वो हालत ये हुई कि आप जो है बकौल इब्न इंशा के
कि कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाते मगर जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा, हर जगह तू है। यहाँ भी तू आ गया तो तेरे पीछे तेरी मखलूक भी आ गई, और फिर वो बात वो नहीं रही। लेकिन आखिरी दम तक आज भी हम लोग चूंकि यहीं बड़े पले हैं, इन पत्थरों से जो कुछ भी बच गए हैं उनसे बेहद मोहब्बत, बेहद लगाव हम लोगों को रहा है। न सिर्फ हम, हमारे घर के लोग, इस इलाके में पुराने जितने भी लोग हैं, वो पहले जो बात करेंगे वो यहाँ के खूबसूरत पत्थरों की ही करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। तो पत्थरों में भी सज्जाद साहब ने जरखेजी देखी है, ये हम कह सकते हैं। जी, जैसे कि मैंने कहा, दिस इज समथिंग दैट कीप्स द कल्चर अलाइव, यू नो, द स्टोरीज, द सिंबल्स, द साइंस, and Sajjad Sahab is an expert in doing so. बेहद शुक्रिया सज्जाद साहब for these lovely anecdotes, और हम आपके ममनून व मशकूर हैं कि आपने हमारे साथ ये बेशकीमती जो तोहफे हैं जो हमसे शेयर किए। आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस का बेहद बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। और अभी सज्जाद साहब से बातें करते करते एक दो बातें जहन में ये आई हैं कि इरम मंजिल शायद और कोहिस्तार भी शायद बंजारा हिल्स में रहा होगा, जहां आप हिल्स नहीं बचे हैं, सिर्फ नाम रह गया है। और चूंकि गालिब का भी जिक्र आया है तो मैं एक शेर अर्ज करते चलना चाहती हूँ। नहीं, इरशाद। कि देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। बहुत शानदार। I would like to share with those of you who are new to our I Am Here to Wonder Baithaks that we have done other sessions too like this earlier. One called Geet Gaya Patharon ne, which was delightful and it got a wonderful response. The second on cuisine and rocks, which had a cook along with the famous Meenu Appa. And the third on Dakhni miniatures and rocks, which is now regarded among art lovers and academics as a very fine world-class effort. In every session, we've had a huge response each. And तहे दिल से हमें लगता है कि लोगों ने अपने दिल में वही महसूस किया है जो हम दिखा रहे हैं, या हम शायद वही दिखा रहे हैं जो सभी जानते हैं और महसूस भी करते हैं कि गोया ये भी मेरे दिल में है। और मैं अपनी टेक टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैट बॉक्स में प्लीज आप अदर कोहिनूर्स की वेबसाइट और ईमेल आईडी शेयर करते चलें। आई वुड रीड इट आउट टू दोज हु आर नॉट reading and only listening. Our website is www.otherkohinoors otherkohinoors.com, and our email ID is otherkohinoors@gmail.com. If you want to reach out to us, this is the place you reach out to us, otherkohinoors@gmail.com. Absolutely. And, yes. So Pallavi has mentioned this for the sake of those who are joining through the social media handles and channels, particularly on YouTube and also Facebook Live. We are broadcasting this program live there, and we have had this similar or exactly the same response when we had this film trailer being launched. And that is also on our website. And all this is what keeps us going in this effort of Other Kohinoors, the Rocks of Hyderabad. So please do visit our website and find any which way you can to strengthen our hands and join us in this effort. And come to our premiere and suggest us ways to screen the film in different spaces in the city. I think this is also being highlighted by Uma in her introductory remarks. So once again, at the cost of redundancy, I would again like to mention it. We will bring the film free of cost to you, along with a speaker to initiate an interaction and follow up. So I hope you're looking at our website and also going to respond to our email. So thank you everybody for responding to our call and looking at our website and also taking down our email ID
for further follow-up. We hope to see a lot of response from the audience. तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। Absolutely. Yeah, तो आगे चलते हैं। तो हमारी अगली जो सौगात है इस महफिल की वो है एक हल्की फुल्की सी गुफ्तगू जनाब गुरशरणजीत सिंह साहब से। So उनका मुख्तसर सा तारुफ कुछ इस तरह से है। He is an engineer by profession. Music is his hobby and he tries to compose and sing ghazals. और वो हमारे साथ 7 समंदर पार जुड़ रहे हैं और उन्होंने काफी अरसा हैदराबाद में गली कूचे मोहल्लों में गुजारा है और वो यहाँ के कदोखाल नक्शे बल्कि जोग्राफिया से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। तो वेलकम जी। अब जी थैंक यू वेरी मच। और this is an odd time for you to join from Canada. No, actually it's morning here. So सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आपकी इतनी खूबसूरत शाम का हिस्सा बनने के लिए। वेलकम। बेहद शुक्रिया। आपकी नींद को हमने कुछ पहले ही जगा दिया है समझिए, तो जिसके लिए हम पहले से ही माफी मांगते हैं। तो अपने दरो दीवार सजा कर देखो। This is about coming to Hyderabad and seeing the rocks, lining the roads. So इस शेर पर बल्कि इस मिसरे पर आपका क्या कहना है गुरशरणजीत जी? जी एक्चुअली सच में मुझे जब सुदर्शन जी ने इंट्रोड्यूस करवाया आपकी टीम से तो जो मेरे दिमाग में जो बात आई वो था निदा फाजली साहब का ये शेर कि पत्थरों में भी जुबान होती है दिल होते हैं, अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो। तो मुझे बहुत ही रेलिवेंट लगा कि ये डेफिनेटली ये सेम थीम है जो आप पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं इस मूवी के जरिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे दरो दीवार तो सजे हुए थे जो हमारे हाथों से निकल रहे हैं और हमें बचा खुचा जो भी है उसे बचाना है। जी तो सच में एक्चुअली अगर आप मैं जैसे एयरपोर्ट से जब भी कभी हैदराबाद सिटी की तरफ आया तो मुझे मतलब जो एक चीज ध्यान खींचती है वो है यहाँ की रॉक्स और उनकी फॉर्मेशंस। मतलब एकदम दिमाग में आता है कि जैसे शायद कादर ने हमारे लिए वो सारी चीजें सजाई हो। क्या बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है जैसे वो पत्थर इस दौड़ में इस समय की दौड़ में पीछे पड़ते जा रहे हैं और शायद अनफॉर्चुनेटली वो आने वाली जनरेशंस के लिए ना बचे। तो आपकी टीम उमा जी और आपकी टीम का इस हौसले भरे काम के लिए शुक्रगुजार हूँ और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। एक अगर मिनट आप मुझे और दें तो मुझे कुछ शेर मिले मोहसिन साहिल साहब हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो बहुत ही रेलिवेंट है आपकी जो ये कोशिश है। जी शुक्रिया। तो वो ऐसा कहते हैं कि दिलकश हैं ये कितने पत्थर, दिलकश हैं ये कितने पत्थर, बेजान लेकिन सारे पत्थर, इनमें भी कुछ दिल रखते हैं, इनमें भी कुछ दिल रखते हैं, पत्थर कब हैं सारे पत्थर। वाह। और जो लास्ट शेयर है वो मुझे पर्सनली ऐसे लग रहा है कि वो शायद आप ही का मैसेज है। साहिल कोई तो ये समझे, साहिल कोई तो ये समझे, है नाजुक शीशों से पत्थर। वाह बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरशरण सिंह जी, आपने इतनी दिलचस्प बातें और इतने बेहतरीन शेर हमसे शेयर किए हैं, इतने बेहतरीन शेर अशार। मैं गटीज एंट्रम की टीम से गुजारिश करती हूँ कि अब हमें गुरशरणजीत सिंह जी की गाई हुई गजल सुनवाएं प्लीज। हैव अ ग्रेट डे सर। थैंक यू। सेम टू यू। थैंक यू। धूप में निकल
निकलो हटाओ नहा कर देखो फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है वो मिले या न मिले हाथ बढ़ा कर देखो वो मिले या न मिले हाथ बढ़ा कर देखो जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो पत्थरों में भी जुबान होती दिल होते हैं पत्थरों में जुबान होती दिल होते हैं अपने घर के करो दीवार सजा कर देखो अपने घर के करो दीवार सजा कर देखो जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो धूप में निकलो हटाओ नहा कर देखो थैंक यू वाह वाह, बहुत ही शानदार, बेहद शुक्रिया गुरशरणजीत जी फॉर दिस लवली रेंडिशन ऑफ निदा फाजली साहब। खूबसूरत नज़्म, आपने 4 चांद लगा दिए, जिसका बेहद शुक्रिया। जिस तरह हम अपने घरों को सजाते हैं, संवारते हैं, उसी तरह हमारा ये जो विरसा है, ये खूबसूरत पत्थर और चट्टानें जो कि आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ कम हो रहे हैं बल्कि खत्म भी हुए चले जा रहे हैं, और उनको भी अपने शहर बल्कि मुल्क की जीनत बनाना हमारी बल्कि मॉरल जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग हैदराबाद जब घूमने आते हैं, जैसा गुरशरणजीत जी ने कहा कि वो एयरपोर्ट से जब शहर के अंदर दाखिल होते हैं तो अतराफ इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे पत्थर हुआ करते थे कभी, वो अब फिलहाल नहीं है, लेकिन आप अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार वगैरह के साथ मिलजुल कर इन लाजवाब और पुरनूर पत्थरों को देखकर सेल्फीज ले सकते हैं उनके साथ, बल्कि आप तो वहां पर कुछ टैग भी कर सकते हैं। तो इन चट्टानों और पत्थरों की जो तिलस्मी खूबसूरती है उसको उजागर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे ना आप सभी ऐसा? मैं तो करूंगी। सो हमें पूरी उम्मीद है कि आप भी पल्लवी की तरह ऐसा ही करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस शंगो शायरी की महफिल में, और दावत सुखन देना चाहेंगे अली मीर साहब को। तो उनका मुख्तसर सा तारुफ मैं करवा दूं। मीर अली हुसैन is an academic and writer who has translated the works of several Urdu poets, including the collection of Javed Akhtar's poem titled In Other Words. Mir Ali is the author of Anthems of Resistance, जो कि मैंने पढ़ी है, a definitive book on All India Progressive Writers Movement. He is also an acclaimed lyricist and has written the songs of
Films like Door, Ashaएं, Dhanak, ये सभी award winning films हैं, to name a few. So he co-wrote the story for Nagesh Kuknur's Door and also the screenplay for Nandita Das Manto. Saadat Hasan Manto पर ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी थी. And more recently he wrote the screenplay and dialogue of Baba Azmi's film Me Raksam, I Dance. So हमारी दरख्वास्त पर अली मीर ने पत्थरों पर नज़में लिखी हैं. हम और भी उनके बेहद मशहूर हैं कि उनके भाई रजा मीर और उन्होंने, बल्कि दोनों भाइयों ने हमारी इस कोशिश और काविश में बहुत बहुत ज्यादा मदद की है, जिसके लिए उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. अब मैं इल्तिमास करूंगा अली मीर साहब से कि वो कुछ कहें और अपना कलाम भी सुनाएं. अली मीर साहब. ये आवाज आ रही है? नहीं, बिल्कुल साफ और शफाफ. अच्छा, तो कुरान मजीद, as you may or may not know, is a wonderfully poetic book, both in content and form, and it has a lovely ayat on mountains that I would like to begin with. In Surat An-Naba, Good Tidings, it says, Alam naj'alil arza mihadan wal jibala awtadan. Did we not make the earth as a bed? Did we not make the mountains as its pegs? In the Quran, as elsewhere, mountains, hills, and rocks signify support, firmness, steadfastness. They're also the fonts of inspiration. Jesus acquired his wisdom wandering in the mountains. Moses was summoned to the togehter to receive God's message. And while this moment is often celebrated, Urdu poetry, with its tradition of Gustakhana Shayari, doesn't shy away from mocking the Prophet either. So in a ghazal, Ghalib mischievously writes, "Kya farz hai ki sabko mile ek sa jawab? Kya farz hai ki sabko mile ek sa jawab? Aao na hum bhi sair kare togehter ki." Why should we assume that God's commandments to Moses were meant for us all? Let us go and visit the mountain of Tur too. Shayad hame kuch aur kaha jaye. Sauda similarly scoffs at the Prophet, saying कि हर संग में शरार है तेरे ज़ुहूर का, हर संग में शरार है तेरे ज़ुहूर का, मूसा नहीं जो सैर करूं कोहेतूर का. And every stone contains your manifestation. I'm no mere Moses. I don't need to travel all the way to Tur to see God. फिर ये भी है कि उर्दू शायरी में संग या पत्थर is often hurled by the sangzans at glass to shatter it, or at lovers in order to hurt them. So recalling the fate of Majnoo, Ghalib writes, "Maine Majnoo pe ladakpan mein asad, sang uthaya tha ke sar yaad aaya." When I was an immature youth, I picked up a stone to throw at Majnoo, but I stopped myself when I thought of my own vulnerable head. The term sang dil is used to describe someone or something that lacks feeling and is indifferent to suffering. तो खैसरुल जाफरी का शेर है, हवा खफा थी मगर इतनी संग दिल भी न थी, हमी को शम्मा जलाने का हौसला न हुआ. And heavy objects that they are, the metaphor of stones is used to depict difficulties and challenges. तो वो जो मीर की गजल है जिसका फेमस मतला है, देख तो दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है, उसका मक्ता ये है कि इश्क एक मीर भारी पत्थर है, इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुष्ना तवा से उठता है. And similarly, the word sangeen, hard या stony, is used to represent an oppressive condition. So in a nazm, Sahir Ludhianvi writes कि आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की, डसलेगी जानो दिल को कुछ ऐसे के जानो दिल, ताउम्र फिर ना कोई हंसी ख्वाब बुन सके. So weighty mountains are, or at least used to be before the age of dynamite, symbols of permanence. The most difficult of tasks was that of the kohkan, the one charged with breaking down a mountain. And one such kohkan was Farhad. Farhad's story is part of an epic poem by the 12th century Persian poet Nizami. And
In the version of the story that has become popular in the subcontinent, thanks to its Sufi interlocutors, Farhad the craftsman falls in love with the queen of Armenia, Shirin, who is the object of desire of the Sasanian king Khusro. So Khusro decides to play with his love rival, his Rakhib, and offers to step aside if Farhad can manage to accomplish the impossible task of carving out a river from the mountain of Behistun. The love recognizes no limitations, and Farhad gets to work, chipping away with his pick, till he finally bends nature to his will. And as a jubilant Farhad descends the mountain to claim his prize, Khusro sends a messenger to intercept him and to tell him the lie that Shirin had died. Disconsolate, Farhad takes his pick, the tesha, and strikes himself dead. So Farhad is both a revered figure for his persistence and steadfastness, but this being Urdu poetry is also marked for ridicule. Elevating himself above Farhad, for example, Mir writes, Mere sange mazar par Farhad, Mere sange mazar par Farhad, rakh ke tesha kahe hai ya ustad. And the most famous share in this genre is Ghalib's, Peshe baghair mar na saka koh kan asad. Peshe baghair mar na saka koh kan asad, sargashtae humare rusumo huyud tha. Ghalib is making 2 points here. First, that tradition and custom restrain one's imagination to such an extent that when poor Farhad wanted to kill himself, all he could think of using was the tool of his own trade. And second, that Farhad's love can hardly be held up as an exemplar, for had his love been true, he wouldn't have needed the axe. The very news of his beloved's death should have been enough to kill him. So while we can empathize with Farhad, this gathering is part of the effort to save the rocks of Hyderabad, or the few that remain from the modern day Kohkans. I was asked to write some verses mourning the uprooting of the pegs that stabilize the earth, that stand as our sentries, that serve as the basera of Shaheens. लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ वक्त पर भी मेरी नजर है. I had promised that I would end within 7 minutes, and I intend to do that. तो मैं बस आपके साथ 3 अशार शेयर करूंगा, और फिर I'll wrap up my talk. So in a nod to Allama Iqbal's verse, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा. I wrote, ढाकर पहाड़ सारे ये कहते हैं कोहकन, ढाकर पहाड़ सारे ये कहते हैं कोहकन, वो पासबान और वो निगहबान किधर गए. Recently, I visited my uncle's home on road number 13 in Banjara Hills, along with many others of my family. So we recalled the childhood when the vista in front of his house was just chock-a-block full of boulders that we very happily clambered over. It's a very happy memory of our childhood. Our cousin told us that there was one last set of rocks remaining down the road, and we walked over to look at them. And what we saw were men and machines busy breaking them down into granite to be hauled away in order to make room for yet another fancy home. So I've tried to capture my mood in this share. कि जुनून संग तराशी का शोर बरपा है, जुनून संग तराशी का शोर बरपा है, सुकूत शहर का शीशा बिखर बिखर ही गया. And in order of those once open spaces, I write, वुसअत जहां थी अब वहां तामीर छा गई, वुसअत जहां थी अब वहां तामीर छा गई, पर्वत को संगो खिश्त की तरतीब खा गई. And I wish this movement strength and luck. May we have the courage and the wherewithal to save what is left of this precious heritage, even if some of those stones are flung at us in return. जरूर होगी हमें भी नसीब लज्जत संग, जरूर होगी हमें भी नसीब लज्जत संग, जुनून है तो उसे मोतबर किया जाए. Thank you sir, क्या बात है. Thank you so much sir. जरूर होगी नसीब हमें भी लज्जत संग. थैंक यू सो मच सर. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इतनी अनोखी सहानत भरी बातें शेयर करने के लिए सर. मैं सामाइन से ये गुजारिश करते चलती हूँ कि सवालों और कमेंट्स का सिलसिला जारी रखें चैट बॉक्स में. वक्त को देखते हुए महफिल के दौरान या आखिर में हम जरूर उन पर आएंगे, और अगर हम कोई सवाल नहीं भी ले पाए तो भी हम उन्हें ईमेल जरूर करेंगे. Absolutely. जी. अगर आप देखेंगे जो
तस्वीर आपको फिलहाल स्क्रीन पर नजर आ रही है शीरी फरहाद की, एक खूबसूरत तस्वीर है जिसे हमारी रिसर्च टीम ने बहुत मेहनत करके जमा किया है। बल्कि दिस पिक्चर ऑन द स्क्रीन इज टेकन फ्रॉम द इंटरनेट एंड वी हैव नो राइट्स ओवर द पिक्चर। Yes, as you can see the rocks behind, and I'm sure that this picture puts into perspective the ashar shared with us by Ali Saab just now. Absolutely, और अली साहब ने मंटो की भी याद दिला दी और काफी पोएट्री और प्रोज की भी, स्पेशली लज़्ज़त संग जो कि मंटो का लिखा हुआ है। बेहद शुक्रिया अली साहब आपका फिर से एक बार, और मुख्तसर वक्त में आपने काफी बेशुमार शोरा की जो तस्रीह की है, मैं समझता हूँ वो लाजवाब है जी। तो हमारी अगली पेशकश इस शाम संगो शायरी की महफिल में मोहतरमा जमीला निशात साहिबा का कुछ तारुफ हो जाए और वो हमसे कुछ तासुरात और कलाम भी शेयर करेंगी। So let me take this privilege to introduce very briefly Jamila Nishat Sahiba. She is an insightful and compelling verse, and her verses transcend both the political and also personal. Well known for her activist poetry and keen sensitivity to issues related to women's empowerment. She has been a long-time champion of social justice and communal harmony. Jamila Nishat's humanistic and philosophical writing retains the lyrical and feminine sensuality most evident in her deeply personal contemplations on love, loss, and pain. And there's a poem written by her from the perspective of Dharti, the earth, its pain in being exploited and loss of natural resources in the name of development. So जमीला जी, सबसे पहले शुक्रिया, आज इस महफिल में आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका बचपन भी हैदराबाद के इस बेशकीमती पत्थरों के दरमियान गुजरा है, तो क्या कहना चाहती हैं आप इस विरसे के बारे में और आपकी नज्म धरती पर आपके कुछ तासुरात? जी आदाब। मैं आदाब खास तौर पर कहूंगी क्योंकि हमारे तहजीब में आदाब बहुत था। आदाब ही कहा करते थे जो आज सलाम वालेकुम से चेंज हो गया। वो कुछ लोगों को शायद अच्छा लगे, मुझे आदाब ही अच्छा लगता है। हमारी तहजीब जो मैं बचपन में चट्टानों को और चट्टानों पे फुदकती हुई चिड़ियों को देखती थी, तो मैं सोचती थी कि ये कितनी खूबसूरत चीजें हैं। जब मैं लिटरेचर की स्टूडेंट तो नहीं हूँ और ना मैंने ज्यादा फरहाद शीरीन के बारे में सोचा है, लेकिन ये जरूर सोचती थी कि हमारा दक्कन कितना खूबसूरत है, और अगर वली दक्कनी वली गुजराती न बनते तो आज शायद हमारी शायरी में वो दम होता जो हम आज ढूंढ रहे हैं गालिब और मीर की शायरी या इकबाल की शायरी में। यहाँ पर भी हमारे यहाँ दक्कनी मिट्टी से जुड़ी हुई शायरी जरूर मिलती। दक्कनी को अक्सर ही मौक्करी की ज़बान बना दिया गया है, जो गलत है। बहुत सीरियस काम हुआ है और होता रहेगा, मुझे यकीन है। मेरी नज़म, मैं यूँ कहूँगी कि मैं इस मिट्टी की बनी हूँ और यही मिट्टी आपके सामने बोल रही है। ये मिट्टी रो भी रही है और समाज से पूछ रही है कि आप ये क्या करना चाहते हैं। क्या आप हम सबको, हम इस धरती को, चट्टानों को मिटाकर जी पाएंगे? इसी से मेरी नज़म है। आप नज़म सुनिए, उसके बाद में फिर हम आपके सवाल अगर हो तो पूछ सकते। जी जरूर। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया। आपने जो एक हमारे सामने एक खाका खींचा है, बल्कि मैं समझूंगा कि यू हैव पेंटेड अ वंडरफुल पिक्चर बिफोर आवर आईज। सो वी विल लिसन टू योर piece. So can I request the Poetess Interim team to play her piece? मेरा नाम जमीला निशात है। एक नज़्म पेश कर रही हूँ। मातम मैं कर रही हूँ, धरती हूँ जल रही हूँ। मातम मैं कर रही हूँ, धरती हूँ जल रही हूँ। चट्टानें चीर कर तुम सड़कें बना रहे हो, मुझको मिटा रहे हो। पेड़ों को काट कर तुम हाईटेक बना दिए हो। पेड़ों को काट कर तुम हाईटेक बना दिए हो। कोयल भी रो रही है, कागा हुआ है गायब।
कोयल भी रो रही है, कागा हुआ है गायब, पर्वत कराहता है, सीना हुआ है छलनी। पर्वत कराहता है, सीना हुआ है छलनी, मुझ पे ये जुल्म कैसा, आवाज़ें गूंजती हैं, गिलहेरी पूछती है, चिड़िया कहाँ गई है। गिलहेरी पूछती है, चिड़िया कहाँ गई है, पथरा गया कलीजा, कैसा लहू है फैला। पथरा गया कलीजा, कैसा लहू है फैला, ये सख्त जान पत्थर सड़कों तले दफन है। ये सख्त जान पत्थर सड़कों तले दफन है। उठो समाज वालों, उठो समाज वालों, अब होश में तो आओ, फट जाएंगी ये सड़कें, लावा उबल पड़ेगा, धंस जाएगा हर इंसान, पारा भी फिर बहेगा। फट जाएंगी ये सड़कें, लावा उबल पड़ेगा, धंस जाएगा हर इंसान, पारा भी फिर बहेगा। उठो डिजिटली तुम, उठो डिजिटली तुम, अब होश में तो आओ, काटो न चट्टानों को, अब होश में तो आओ। मसनवी जहन है अब, मसनवी जहन है अब, ये भूल तो न जाना, तुमको ही मिटा देंगे, बस होश में तो आओ। तुमको ही मिटा देंगे, बस होश में तो आओ। मिट्टी से आ रही है, सुन लो सदा ये कैसी, मिट्टी से आ रही है, सुन लो सदा ये कैसी, अब होश में तो आओ, अब होश में तो आओ। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जमीला निशात साहिबा, हमसे रूबरू होने के लिए, इतनी वजनदार शायरी के लिए और उतनी ही दमदार पढ़ंत के लिए। मैम, क्या आप इसके बारे में और भी कुछ तफसील हमारे साथ शेयर करेंगी? देखिए, ये जो चट्टानों को काटा जा रहा है जी, तो हमारे, आप जब नई शहर को देखते हैं, हाईटेक सिटी को देखते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, और फिर इतना दर्द, जो पत्थर गट्टी की बात कर रहे थे, वहां से यहाँ तक का जो सफर है, शायद हमारी सियासत को अच्छा लग रहा है उस पर सियासत करना। हमारे जो पार्टी के लोग हैं, हर पार्टी के बराबर अपनी सियासत इस पर जारी रखें, और उस पर काफी पैसा भी बना रहे हैं। और इस पैसे और सियासत के चक्कर में उन्होंने जो हमारी कुदरती वसाइल को खराब किया है, उसका मुझे बहुत डर हो रहा है, बहुत ज्यादा डर है कि अगर हम इसे आज ना रोकें तो शायद हमको आगे आगे बहुत सारी परेशानियां आनी पड़े। इसके लिए अभी मैं अपने आपके इस यूट्यूब से ये सब तमाम सियासी लीडरों से गुजारिश करूंगी कि सोचिए चट्टान के जहन से, अपने जहन को चट्टान में डालकर सोचिए कि आपने इन चट्टानों के साथ क्या किया है, और अगर हम इसी तरह करते रहे तो क्या क्या हो सकता है। तो इसको हम जरूर सोचना है कि हमें कहाँ इसे रोकना है। अब बहुत हो चुका, अब इसे रोकना ही जी। और आप लोग जैसे लगे हुए हैं तो मुझे यकीन है कि ये काम आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारी आवाज से आवाज मिलाई, जो है बस यही तो चाहिए मैम सबसे। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली। और बल्कि वो कहना चाहती हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो लोग काफी संग दिल हो गए हैं, उन्हें इंसानी से काम लेना पड़ेगा और पत्थरों के साथ ऐसा सुलूक करना पड़ेगा जिससे उनकी बका हो सके, उनकी नशोनुमा भी होनी चाहिए, बल्कि because these are the very wonderful formations. Exactly. Yeah. And it's a evolutionary process. It is indeed. Yeah. Thank you so much, ma'am. And आगे बढ़ते हुए मैं हमारी अगली कलाकार मेहमान डॉक्टर कीर्ति के बारे में आप सबसे इनका तारुफ कराना चाहूंगी। She is a radiologist, a mother, a Carnatic singer by training, a poet, an interior designer, and an artist. She is an advocate of sustainability,
mental health, women and child health, education and feminism. और आज वो हमारे बीच मौजूद हैं, तो आइए अब हम उनसे मुखातिब होते हैं। हेलो डॉक्टर कीर्ति। नमस्ते, हेलो। नमस्ते, कैसे हैं आप? Very good, thank you. Completely mesmerized by everybody's performances. आप हमारे आज के जो हमारी बातचीत चल रही है उसमें आप कुछ बोलना चाहेंगी? हमसे कुछ शेयर कीजिए। मेरा रिश्ता हैदराबाद के रॉक्स से बहुत ही पुराना रिश्ता है, बिकॉज मेरे पेरेंट्स भी यहीं पे पैदा बड़े हुए और मैं भी यहीं की हूँ, तो यू कैन ऑलवेज even if you go out of Hyderabad, you cannot remove Hyderabad from a Hyderabadi's heart. And rocks are a major part because मैं जब छोटी थी हम लोग बंजारा हिल्स के जर्नलिस्ट कॉलोनी में रहते थे, जहाँ पे अभी भी थैंकफुली वो जहाँ पे हमारा टेक टीम है वहीं पे एक बड़ा सा रॉक है जिसके ऊपर एक छोटा सा रॉक बड़ी अजीब से बैलेंस करके वहीं पे रुका हुआ है, पता नहीं कितने सालों से। जब से मैंने देखा है तब से तो वो वहीं पे है। एंड चट्टान दिल। तो आई एम होपिंग कि जिस तरह हम लोगों ने उस रॉक को प्रोटेक्ट किया है, इवन दो उसके इर्द गिर्द सारे ही मकान ही है अभी, बट एटलीस्ट उसको तो हमने प्रोटेक्ट किया है। ऐसे ही हम बाकी रॉक्स को भी बचा पाए with this endeavor of Uma, Man, all of you. So here's hoping for a better future. And I've listened to everybody on the panel और मुझे एक चीज लगी कि हम लोग पत्थरों को तोड़ के कंकरों से कंक्रीट जंगल्स बनाते जा रहे हैं। ये है मैन मेड कंक्रीट जंगल, बट जो भगवान ने, खुदा ने बनाया हुआ है, जो ब्लेसिंग्स ऑफ रॉक्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं, दैट इज इरिप्लेसेबल। जितना भी हम प्रोग्रेस कर ले, जितना भी हम एडवांसमेंट्स कर ले, नेचर को हम कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। और समथिंग वी शुड प्रोटेक्ट is definitely rocks are one of Hyderabad's blessings and we must protect them, and I'm completely with this movement. So thank you so much. Thank you so much for sharing this, and thank you so much for your words. Thank you so much for being with us, and I'm sure everyone present here is also with us today in this. और आप आज कतील शिफाई की खूबसूरत गजल ये मौजिज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे, यही सुना रही। ठीक है, तो आइए चलते हैं। I'm really thankful to Uma and Man for suggesting this song to me, and Jagjit Singh has been a favorite throughout my life, so I'm very, very glad that I got to sing this song. I hope you enjoy it. Thank you so much. Let's move to Dr. Kirti's ghazal. Team, please cue Dr. Kirti's ghazal for everyone. Thank you. ये मौजिज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, ये मौजिज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, के संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे, के संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे, ये मौजिज़ा वो मेहरबान है तो इकरार क्यों नहीं करता, वो मेहरबान है तो इकरार क्यों नहीं करता, बदगुमान है तो
पे गिरे और जख्म आए मुझे किस्म तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे ये मौजिज़ा वो मेरा दोस्त है सारे जहाँ को है मालूम वो मेरा दोस्त है सारे जहाँ को है मालूम दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे किस्म तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे ये मौजिज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे किस्म तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे ये मौजिज़ा वाह, बहुत खूब, बहुत ही शानदार। और बिना सांस के, मैं कहूँगा सिर्फ आवाज से ही आपने वो इमोशंस हमारे अंदर बर्पा किए हैं। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर कीर्ति फॉर दिस beautiful rendition, and I believe it encourages audience to write in the chat box their appreciation. So guys, please do put your emotions and thought in the chat box. लेकिन उससे मुझे एक और अल्लामा इकबाल का मशहूर मैंने तो वो मुझे ऐसा लगा जब वो गा रही थी कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। So thank you so very much, Dr. Kirti, for this very wonderful Thank you, Naeem. Indeed, the words of the audience are encouraging us to move on. And our next guest performer, Gopika Jairam, is a Carnatic trained vocalist, composer, theatre artist, and writer based in Hyderabad. She dabbles often with the Hindustani singing style as well. A member of Murthovik's Carnatic Electronic Ensemble for Antariksh Sanchar, a transmedia theatrical dance opera turned video game. She currently works as an assistant music producer at Naad Brahm Records in Hyderabad. And she is also the singer who has sung for the song of the Kohinoors that we had played earlier this evening, as we had all enjoyed this evening, in fact. So welcome, Gopika. Hi, thank you guys. Thank you, Pallavi, for that kind introduction. And it's really an honor to be a part of something so special, especially alongside artists and writers and subject experts of such stature, you know, and to hear them all share what they've had to share. I also just want to take a moment to thank, you know, you, Naeem, for, of course, you guys have been holding the show at a good pace, and, you know, everybody's having a great time. It's very seamless. And thank you, Uma and Mahnur, and the GZ Tech team, and everybody who's behind O Shayari today. And also, just because I have been a part of the otherkohinoors project, I feel I have the responsibility to speak about that as well, not just that this is an opportunity, because I remember during the workshopping with Uma,
I did ask, like, when did you start this project? And I believe this has been running for a decade now. And that is just amazing. Like, for the goldfish memory that today's people have, like, we need to scroll over reels, like, you know, the shorter your content, the faster. Like, we don't have time for anything, right? And to have find people who can stick to something and give their heart and soul into it, and that too, this is a product of labor, and it's just an honor to be a part of something so wonderful. And as someone, I come from Kochi in Kerala, and as someone who's not actually from Hyderabad, supposedly, when I speak about it, that's when I actually realize I'm not from Hyderabad, you know. But otherwise, because of this project, I got to learn a lot about the nuanced history of this city that has so graciously adopted me and taken care of me for more than 10 years. And that's why I could really relate to the line that was shared earlier ki jo aaya ek baar yahan wo apne desh na lauta. I can really definitely relate to that line, you know. So thank you so much, guys, and I really hope all these efforts go to a fruitful direction. Thank you so much, Gopika, and you and I, sister, you and I are in the same boat, because मैं भी वही मुसाफिर हूँ जो अपने देश नहीं लौटी. हाँ, and although मेरा खुद का गांव भी बहुत पत्थरों को लेकर काफी फेमस है, but हैदराबाद है. और आप मिर्जा गालिब के शेर से शुरुआत कर रही हैं ना, यारब जमाना. Yes, I think I should apologize in advance. I'm sneaking in the fact that I'm from Kochi so that I can apologize for my atrocious pronunciation. I feel so nervous that my Urdu, supposed Urdu, is going to come out right now, but it's got heart in it. I have a lot of love for the city. So Uma definitely asked me, why don't you open with this particular verse? And you know, the whole ghazal, when seen from the standpoint of, like, if rocks were personified and they were to sing something like this, I think that is the kind of soul that I could see in the ghazal itself. I think as it unfolds, even the listeners would actually probably relate to that. And I think, you know, as Jamila Sahiba or anybody else who shared their thoughts before this, like, we have all been a part of the problem. And I think we are given an opportunity to be a part of the solution as well. So here's to that, right? Absolutely, here's to that. And as the शेर goes के यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हर्फ मुकर्रर नहीं हुए. हर्फ मुकर्रर is like while writing, if you make a mistake and you erase it and rewrite it, right? Yep. On this world's canvas, the rocks are not like these letters of the alphabet that can be struck off and rewritten. Once lost, they can never be rewritten. They need to be honored and cherished, not erased. And indeed, this is the time. This is an opportunity for us to be a part of the solution. Absolutely. So thank you so much, Gopika. And Naeem, बल्कि मुझे गालिब की जो लाइनें हैं वो याद आ रही हैं कि मैं गया वक्त थोड़ी ना हूँ जो एक बार चला गया तो लौट के आ न सकूं. मैं गया वक्त थोड़ी ना हूँ जो एक बार चला गया तो लौट के ना आ सकूं. गालिब ने तो अपने जमाने और अपने माहौल के ताल्लुक से कहा था, लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए, आज हम वहां पर है और ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहां पर हमें कहना पड़ रहा है कि गुजरा वक्त नहीं आता, और जहां तक इन चट्टानों और पत्थरों की बात करें, ये भी लौट कर नहीं आते एक बार फना होने के बाद. जी. तो प्लीज 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 इन हसीन और खूबसूरत पत्थरों की हिफाजत कीजिए. Yes, and from all of us. Let's do this together. And for now, let's listen to the beautiful rendition of this ghazal by Gopika. Absolutely. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं गोपिका जी की खूबसूरत आवाज में ये खूबसूरत गजल के साथ. चलिए. यारब ज़माना
यार अब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लो है जहाँ नहीं हूँ मैं, लो है जहाँ नहीं हूँ मैं, दारूं पड़ा तेरे दर पर, नहीं हूँ मैं, खाके से जिंदगी के पत्थर, नहीं हूँ मैं, दारूं पड़ा क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, घबरा न जाए, घबरा न जाए दिल, क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल,
वाह, बहुत खूब, बहुत ही शानदार गजल। थैंक यू सो मच। Thank you, Gopika, for this lovely rendition of Dayam Pada Hua. Your voice was, as usual, mesmerizing, and it had that quality, that soulful quality that I especially have always loved, and I'm sure everybody enjoyed this rendition. So I would thank you so much, Gopika, and see you soon. I would once again request Sajjad Saab to join us over the video and take us towards the tail end of today's evening. हालांकि जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी सर जी, सज्जाद साहब को बार बार सुनने का जो ज़ौक और शौक पैदा हुआ है वो नहीं, कुछ शौक की बात नहीं है। आप लोगों की इसमें कोई चाल नजर आती है। नहीं, वो दुश्मनी है। आवाजों के बाद फिर वही बात होती है गालिब की कि उसी खाना खराब की सी आवाज जो है आप जो है सामने ला देते हैं। दोनों में आपकी हरकत में जो है आप दोनों की मिली भगत है। ये कोई मैच फिक्सिंग नहीं है सर, ये दुश्मनी है। खैर, ये है कि गोपिका जी की आवाज के बारे में क्या कहें कि वो शोला सा लपक जाए है। आवाज तो देखो, अब मेरा ये फर्ज बनता है कि ये जो इतने सालों से एक काम हो रहा है उसके बारे में मैं जो अपना खराज पेश करूं। खराज इसलिए पेश करना जरूरी है कि अकबर ने कहा था, जो सर सैयद के क्रिटिक थे, उन्होंने आखिरी में ये कहा कि हमारी तो सब बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है तो हमारी तो सब बातें ही बातें हैं। भाई ये लोग जो दिन रात इन हैदराबाद के नादर और नायाब पत्थरों को बचाने में और उन पे हमारे शहर के लोगों का फोकस लाने पे जो काम इन्होंने किया है, उसके बारे में जितना कहा जाए कम है। हम सब इनके ममनून और मशकूर हैं और होना भी चाहिए। गोपिका साहिबा ने कहा कि वो तलफ़ुज़ की बात, तो ये हैदराबाद में ये आपको आज़ादी है, मैं समझता हूँ यहाँ तलफ़ुज़ कोई माने ही नहीं रखता है, क्योंकि दखनी के बहुत मशहूर शायर हाशमी बीजापुरी ने कहा था, जब उनकी नौकरी पे आ गई थी कि आप उर्दू सही कीजिए कि क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज उर्दू की तरफ दुनिया जा रही थी, तो उन्होंने कहा तुझे चाकरी क्या, तू अपनी च बोल, तेरा शेर दखनी है, दखनी च बोल। तो मैं भी उसी ख्याल पे चलता हूँ कि मैं दखनी हूँ बोलूंगा, कभी शर्मिंदा हुआ हूँ ना होऊंगा। तो ये आप परेशान मत हो हैदराबाद वाले, आपके और आपने जो जिस अंदाज में आपने गाया है वो कोई सवाल ही नहीं है कि उस पर कोई उंगली उठा सके। आगे बढ़ते हुए बस मैं ये कह रहा था कि मेरा जो खराज है वो ये था कि ये जो रैपिड और अनप्लैन्ड डेवलपमेंट हमारे शहर का हुआ है, इसमें हमारी ये बहुत कीमती असासा, बल्कि मैं कहूँगा कि हमारी शनाख्त है। The rocks of Hyderabad are integral to our identity as Hyderabadis. इस पे हमला है, इस पे हमला होता आया है। जमीला निशाद साहिबा ने कहा कि वो पॉलिटिशियन को पत्थर के दिल से सोचना चाहिए। भाई पत्थर दिल इसीलिए कहते हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि सोच रहे हैं, मगर अब आपने आज सुना है कि पत्थर का भी दिल होते हैं, पत्थर भी बोलता है, तो पत्थर बरसते रहेंगे। और ये बात है, गालिब ने कहा है कि हम हैं तो अभी राह में है संगे गरा, और ऐसे हर्डल्स रहेंगे। आप लोग जो काम कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ दोज who have been working to protect Hyderabad's heritage, not only the built heritage but the natural heritage. इन पत्थरों के लिए जो आपने काम किया है, हैट्स ऑफ। और ये जो सस्टेन्ड एफर्ट आपका है, लोग जो है वो कम नजर हो सकता आते हैं, लोगों बहुत कम लोग हैं समझ रहे हैं, लेकिन वही फिर फैज की बात है कि बहुत हैं जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए,
बहुत हैं जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, जो चंद अहले जूनू तेरे नाम लेवा है। तो हम काफी हैं। अब ये बात समझिए कि हम कम हैं और हमारे पीछे एक पूरी और फौज खड़ी है जो हमारे साथ है और हमारे बाद भी रहेगी। सुलेमान खतीब तकनी के बहुत बड़े शायर, उन्होंने कहा कि एक संगीन चट्टान है हम लोग, इन चट्टानों में जान बाकी है। हम में भी जान बाकी है और ये चट्टानें जो बची हैं इनमें भी जान बाकी है। ये लगातार कोशिश चलती रही है, चलती रहेगी और ये है कि इनको कोई न रोक सकता है, न इनको इनके जज्बात को, इनकी वलवले को कोई पस्त नहीं कर सकता, इनके इरादों को पस्त नहीं कर सकता। These activists who have been at the forefront of the struggle to save the heritage of Hyderabad have stood like a rock themselves. They themselves are the rocks now. Despite facing great, trials and facing trials and tribulations in their quest to save these assets, they have, not taken a step backward. They have stood firm. और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हीं एफर्ट से जो कुछ बचा है हम उसको अपने आने वाली नस्लों के लिए कम से कम बचा के रखें, वरना एक दिन ऐसा आएगा अगर इनको छोड़ दें लोगों को अपने हाल पे, तो पूरे अपने ये जो पत्थर है जो हमारी शनाख्त है इसको मिटा के रख देंगे और इसके साथ हम हैदराबादी भी मिट जाएंगे, हमारी शनाख्त मिट जाएगी। इसीलिए इन लोगों को जो लोग हैं जो इस किस्म की बेहुदा हरकतें हमारे शहर के खिलाफ और हमारे तहजीब के खिलाफ, हमारे इनहेरिटेड कल्चरल एसेट्स के खिलाफ करते हैं, फिर जो है आपको वही कहना पड़ता है जो फैज ने कहा कि न गवाओ नाव के नीम कश, दिले रेजा रेजा गंवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। और यहाँ सुनिए कि हम क्या हैं, जो रुके तो कोहे गरां हैं हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। तो आप लोगों ने इस तहरीक को, इस कोशिश को यादगार बना दिया है और वो जो यादगार हमारी शहर की शनाख्त है उसको भी कायम हम लोग करके रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्रिया बहुत बहुत। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे पास अल्फाज नहीं है सज्जाद साहब कि आपने इतने खूबसूरत अंदाज में कहा। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। सज्जाद साहब ने सुलेमान खतीब और फैज अहमद फैज की शायरी के जरिए हमारे दिल की कैफियत का भी जो हाल बयान किया है, वो उसका मैं समझता हूँ कोई सानी नहीं हो सकता, कोई सानी नहीं। बिल्कुल। And we sincerely believe that these verses have also kept us alive in this struggle to protect and safeguard our rocks. और कई बार ऐसा होता है और हुआ है और हमने इस बारे में सोचा भी है, स्पेशली आई एम रेफरिंग टू उमा एंड महानूर, जिन्होंने कई मरतबा ऐसा भी सोचा होगा कि अब बस, अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि जो हाल चल रहा है और वो चीजें आप सह नहीं सकते। पत्थरों की जो ज़बोहाली है, ये जो आलम है, दिलखराश मनाजिर जो नजर आते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, लेकिन जैसे गायब से कोई मदद हो जाती है ना, वैसे ही बेशुमार अनगिनत अनजाने लोगों ने हिम्मत और हौसला दिया बल्कि दिलवाया, जिसके लिए हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं, उन सब के शुक्रगुजार हैं। मुझे इस मौके पर मजरू सुल्तानपुरी का वो मशहूर शेर याद आ रहा है, अर्ज किया है जी। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। And as you rightly said, Naeem, many a times, as I have also been, told that the team of the otherkohinoors, seeing the loss of rocks in our city, faltered in carrying on with the film. But it was lines like these and the incessant support, as you said, that kept the team going. And so many people
came up with contacts and outreach spaces to screen the film free of cost. They worked with the team to keep them going, and here we are on the verge of the big screening and hosting this beautiful mehfil of I Am Here to Wonder. और जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि ये फिल्म द अदर कोहिनूर्स ना सिर्फ क्राउड फंडिंग फिल्म है, बल्कि ऐसा कहा जाए तो मुबालगा नहीं होगा कि ये फिल्म क्राउड मेड है। लोगों के कंट्रीब्यूशन के बिना ये मुमकिन ही नहीं था। फिल्म की मौसीकी के लिए लोग मौसीकार बिल्कुल फ्री में हमारे पास आए और हमसे जुड़े, फिल्म को पाए तकमील तक पहुंचाया। एक बार फिर से उन अनगिनत लोगों का जो बिना जाने पहचाने, कोई तारुफ की जरूरत भी नहीं थी, these are unsung heroes of this film, और उनके एक बार फिर से हजार मर्तबा शुक्रिया। हजार मर्तबा शुक्रिया। और बहुत बहुत मैं अपने तहे दिल से महानूर और उमा को भी अप्रिशिएट और एडमायर बहुत करती हूँ। और जो सज्जाद साहब ने जो लाइन कही ना कि एक संगीन चट्टान है हम, वो भी बिल्कुल इस टीम परफेक्ट बैठती है। तो I mean, Sajjad Saab's anecdotes have not only contextualized this event today, but have also thrown light on the deep connection that poetry and the rocks of the region have with each other. So thank you so much for joining us, sir, today. And Naeem, the responses in the chat box have been many, and वक्त का तकाजा है कि हम इन्हें ईमेल पे आंसर करेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो आप जिन लोगों ने सवालात पूछे हैं प्लीज अपने ईमेल आईडीज डाल दें, हम ये चैट सेव कर लेंगे और हमारे एक्सपर्ट से आपके सवालों के आंसर्स जो हैं वो आपको जरूर ईमेल करेंगे, ये हमारा आपसे वायदा है। और तो अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं मैं अब महानूर यार खान को बुलाना चाहूंगी और नईम और मैं आपसे विदा लेंगे। महानूर फॉर द वोट ऑफ थैंक्स प्लीज। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सभी का। What an evening. It's been a really wonderful evening, and I'd like to thank everybody who has come here today to make it possible and make it such a great evening to have. I would like to thank our MCs, Naeem and Pallavi, for holding the show so beautifully together. I mean, it was literally seamless. For all the artists who readily came on board to share their talents. If they hadn't come, there wouldn't have been a show. We did miss one or two. Unfortunately, we were hoping the Varsi brothers would stay here till the end, but they have a program ahead of them, and so they have left. But I'd like to thank the Varsi brothers for coming, for Sajjad Shahid, Purva Guru, Jamila Nishat, Ali Mir, Raza Mir, who wasn't here unfortunately today, Gopika Jairam, Gursharanjit Singh, and Dr. Kirti Kiran. I think the fact that they shared their voices, their expertise we're very grateful for that. I'd also like to thank all our co-sponsors, Goethe Zentrum, Lama Khan, the Society to Save Rocks, the Poetry Society, and MOS, for all the support that they have given us and continue to give us, I hope, especially the Goethe Zentrum tech team, Paridhi, Nikhil, and Sandeep. A big thank you, without whom the show wouldn't have gone on so beautifully. I mean, everything came on time, and really thank you very much for that. And without the audience who made this show so wonderful, the I Am Here to Wonder O Shayari, I do hope you enjoyed it as much as I did. As you all know by now, I'm Here to Wonder Conversations, of which this is our fourth, and we hope there will be many more, is part of developing a dialogue among us and a larger audience to save the rocks that remain. It is part and parcel of the film Otherkohinoors, The Rocks of Hyderabad,
which we plan to premiere soon. We are hoping it will be sometime in August, but we will let you know the date. Please, in our website, you can leave your name and address, and we will keep you updated on that. The team, will you please share the email ID in the chat box? You can either do it by email or you can do it via our website. So please share the email ID. Thank you. To let you all know, we have a major outreach program planned, which Uma and the MCs have talked about. And we request all of you here to support it via a space, along with an audience to whom we can screen the film free of cost, along with a speaker for discussion. This is to honor different aspects of our rocks and to save them. So again here, if you can send us a note by email, we would be most grateful for that. Tech team, please share once again the poster that was shared earlier with the crowdfunding in the chat box. Do support us if you wish to by sending in a donation of choice. As you can see, there are two links. One of the links is for Indian rupees, and it is via our fiscal sponsor, Society to Save Rocks. And the other is the Milaqat crowdfunding link, in which any currency is acceptable. Someone's calling me now, but don't go away. Stay and enjoy the beautiful rendition by the Varsi brothers of Kab Tak Mere Maula. Thank you all once again for being with us tonight. Khuda Hafiz, Namaste, and good night. Tech team, will you please play the Varsi brothers? Thank you all very much. फरियाद फुगानो आओ कब तक रूदाद सुनेगा तू हमारी कब तक कब चश्मे करम कब चश्मे करम उठेगी मेरी जानिब आएगी मेरे मौला मेरी बारी कब तक मेरे मौला कब तक मेरे मौला मौला कब तक मेरे मौला कब तक मेरे मौला कब तक मेरे मौला कब तक मेरे मौला मौला मेरे मौला कब तक मेरे मौला कब तक मेरे मौला कब तक मेरे मौला कब तक मेरे मौला एक हर्फ तमन्ना हूँ एक हर्फ तमन्ना हूँ बड़ी देर से चुप हूँ एक हर्फ तमन्ना हूँ बड़ी देर से मेरे मौला बड़ी देर से मेरे मौला बड़ी देर से मेरे मौला बड़ी देर से चुप हूँ कब तक मेरे मौला मौला कब तक मेरे मौला कब तक मेरे मौला कब तक मेरे मौला कब तक मेरे मौला ऐ दिल के मकी देख ये दिल टूट ना जाए ऐ दिल के मकी देख ये दिल टूट ना जाए हाँ हाँ ऐ दिल के मकी दिल के मकी ऐ दिल के मकी दिल के मकी ऐ दिल के मकी देख ये दिल टूट ना जाए कासा मेरे हाथों से कहीं छूट ना जाए कासा मेरे हाथों से कहीं छूट ना जाए मौला कासा मेरे हाथों से कहीं
चुप हूँ तब तक मेरे मौला, मौला तब तक मेरे मौला, तब तक मेरे मौला, मौला तब तक मेरे मौला, तब तक मेरे मौला, तब मेरे मौला, तब तक मेरे मौला, तब तक मेरे मौला, मौला। ऐ दिल के मकी देखिए दिल टूट ना जाए, ऐ दिल के मकी देखिए दिल टूट ना जाए, कासा मेरे हाथों से कहीं छूट ना जाए, कासा मेरे हाथों से कहीं छूट ना जाए। मैं आस का बंदा हूँ, मैं आस का बंदा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, 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 मैं उसका बंदा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, मेरे मौला, मौला। सरताबा कदम अपनी मुरादों को संभाले, सरताबा कदम अपनी मुरादों को संभाले, अरे जाते हुए तकते हैं मुझे काफिले वाले, जाते हुए तकते हैं मुझे काफिले वाले, जाते हुए तकते हैं मुझे काफिले वाले। मैं लालाए सहरा हूँ, मैं लालाए सहरा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, मैं लालाए सहरा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला। ऐ दस्ते तलब क्यों तेरी बारी नहीं आई, ऐ दस्ते तलब क्यों तेरी बारी नहीं आई, कहना मेरे आका की सवारी नहीं आई, कहना मेरे आका की सवारी नहीं आई, हाँ कहना आका की सवारी नहीं आई। तस्वीरों तमाशा हूँ, तस्वीरों तमाशा हूँ, तस्वीरों तमाशा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला। तस्वीरों तमाशा तस्वीरों तमाशा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ मेरे मौला, मौला। हाँ ये अश्क कहाँ जाएंगे दामन मुझे दे दे, ये अश्क कहाँ जाएंगे दामन मुझे दे दे, दे दे दामन मुझे दे दे, हो दे दे दामन मुझे दे दे, हाँ दे दे
गुलशन मुझे दे दे, अहमद बहारी मेरा गुलशन मुझे दे दे, दे दे गुलशन मुझे दे दे, दे दे गुलशन मुझे दे दे, अहमद बहारी अहमद बहारी मेरा गुलशन मुझे दे दे, मैं शाख से टूटा हूँ, मैं शाख से टूटा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, तब तक मेरे मौला, मौला तब तक मेरे मौला, तब तक मेरे मौला, मौला तब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, हे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, मौला मैं शाख से टूटा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, तब तक मेरे मौला, हाँ मुमकिन नहीं है आँख तेरी दीद को तरसे, मुमकिन नहीं है आँख तेरी दीद को तरसे, मुमकिन नहीं है आँख तेरी दीद को तरसे, मौला मुमकिन नहीं है आँख तेरी दीद को तरसे, हर रंग में देखूं तुझे दीवार से दर से, हर रंग में देखूं तुझे दीवार से दर से, हर रंग में देखूं तुझे दीवार से दर से, मैं तो तेरा रस्ता हूँ, मैं तो तेरा रस्ता हूँ, मैं तो तेरा रस्ता हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, अब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, हाँ कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे, मैं तो तेरा रस्ता हूँ, मैं तो तेरा रस्ता हूँ, तेरा रास्ता हूँ, मैं तो तेरा रास्ता हूँ, बड़ी देरी राम गरे गम सा सा रे नी सा रे गा रे सा रे नी सा सा नी सा पा पा दा नी सा रे नी सा रे गा रे गम गा रे सा रे नी सा रे गा निसारे सानी 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 दा मा दा बा गा मा दा निसारे सानी निसारे गा रे गा मा गा रे सा दा मा मा गा मा गा रे सा, मैं तो तेरा रस्ता हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, गा मा गा रे गा मा गा रे सा, गा रे सा रे नि सा नि दा नि सा रे नि सा गा मा 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 गा गा मा दा मा दा नि सा रे नि सा गा रे सा रे नि सा नि दा नि दा पा दा मा पा मा गा रे गा मा गा रे गा मा गा रे गा मा गा रे सा सा, मैं तो तेरा रस्ता हूँ, बड़ी देर से गा रे नि सा रे गा सा नि सा रे नि दा नि दा मा गा रे रे गा मा गा रे गा रे सा रे नि दा मा दा नि सा रे नि दा मा गा रे दा नि दा गा मा दा नि सा रे नि दा नि दा रे नि दा मा गा रे रे गा मा गा रे गा रे दा नि दा रे नि दा मा गा रे गा मा रे गा मा रे गा मा गा रे सा, मैं तो तेरा रस्ता हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ,
असरार निहानी तेरे सदके, ऐ काशिफे असरार निहानी तेरे सदके, अब शाज को दे हुक्म रवानी तेरे सदके, अब शाज को दे हुक्म रवानी तेरे सदके, अब शाज को दे हुक्म रवानी तेरे सदके, ठहरा हुआ दरिया हूँ, ठहरा हुआ दरिया हूँ, ठहरा हुआ दरिया हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मेरे मौला कब तक मेरे मौला, ठहरा हुआ दरिया हूँ, ठहरा हुआ दरिया हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, तक मेरे मौला तक मेरे ठहरा हुआ दरिया हूँ, ठहरा हुआ दरिया हूँ, ठहरा हुआ दरिया हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मेरे मौला कब तक मेरे मौला, मेरे मौला कब तक मेरे मौला, मेरे मौला कब तक मेरे मौला, मौला